Hi everyone, welcome to another video. So basically ये एंशियंट इंडिया सीरीज की पहली वीडियो है. What is the purpose behind making this video? कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है ना वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है. एंड माई पर्पस एंड माई एंडेवर इज टू कि जो एंशियंट इंडिया जिसके रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा रिसोर्स उठाए कौन सा करे. और इसके अलावा तो आर्ट एंड कल्चर भी एक्स्ट्रा रहता है कवर करने वाला. तो माई पर्पस इज कि जो एंशियंट इंडिया वाला पार्ट है ना उसको थोड़ा सा इजी किया जा सके. यस, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक एस्पिरेंट की जो जर्नी है वो थोड़ी सी इजी होनी चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. This is the first video where we will cover from Paleolithic phase to Neolithic phase. So before jumping into the stuff, one thing must be noted down. Kalhana was the first historian and the book compiled by him called as Raj Tarangini. ये बहुत important point है which must be noted down. Now sources for historical reconstruction, or we can say that if we want to study history, so what are the resources which are available? First one of them is material sources. Material sources covers archaeology, temples, monasteries. Second one is sculptures. Sculptures means small artifacts made with hand, for example idols. Third, coins. The study of coins is called as numismatics, and symbols on coins like trees, animals, kings were depicted. Next is inscriptions. What are inscriptions? Anything written on hard surfaces like stone or seals called as inscriptions. Next, manuscripts. Handmade scripts usually on soft surfaces like on palm leaves. Next, literary sources. For example, Veds, Ramayana, Mahabharata, Puran, Upanishads, etc. And the last one is foreigners or travelers accounts like Megasenes, Ptolemy, Fahine, Hunsen. Now, first phase is the Paleolithic phase. First phase is the Paleolithic phase, and it comes into three parts: early, middle, and upper. Early, middle, and upper. Early Paleolithic age is from 5 lakh to 50,000 BC, and it covers the greater part of Ice Age. Okay, Ice Age का बहुत सारा पार्ट इसी में ही कवर हो जाता है. And the tools which were used in this age were hand axes, clevers, and choppers. Next, middle Paleolithic age, which is from 50,000 to 40,000, and the people started using stones made from flakes, or you can say sharp tools. So if we compare middle Paleolithic age with early Paleolithic age, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि पहले शार्प टूल्स नहीं यूज होते थे, बट नाउ शार्प टूल्स आर बीइंग यूज्ड इन द मिडिल पैलियोलिथिक एज, एंड द टूल्स particularly were used blades, points, and scrapers. Next one is upper Paleolithic age, which is around 40,000 to 10,000 BC. It is the last phase of Ice Age. Last phase means climate became warm and appearance of Homo sapiens. Homo sapiens means prototype of humans. Next, new type of industries for stones called flint industries were came into being. This is the map. Now you can pause the video and look into the map. Here Paleolithic and Neolithic sites have been covered. This map is being taken from the NCERT. Next, after Paleolithic age, जो हमने पढ़ा कि 10,000 तक लास्ट रहता है. नाउ Mesolithic age, which is from 10,000 to 5,000 BC. It is called transitional phase because microliths tools have been found here. Microliths means small tools. तो हमने अभी पढ़ा कि पैलियोलिथिक का जो अपर और लास्ट फेज था वहाँ पे क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो चुका था, एंड मेसोलिथिक एज आने तक क्लाइमेट और भी ज़्यादा वार्म हो चुका था. एंड क्लाइमेट अगर वार्म है दैट मीन्स पीपल स्टार्टेड मूविंग, एज रिजल्ट न्यू एरियाज ओपनड अप, और भी ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट बनते गए और कल्चर डेवलप होता गया. As movement became common among people, they started preferring domesticate small animals than large animals for travel or food purposes.
Therefore, domestication started. Okay, now what is the social life of Mesolithic age? People participate in rituals. People develop feeling of cohabitation and cooperation by forming large groups of around 10 to 30 people. Then transformation from hunter gatherer to domestication, because यहाँ पे domestication start हो चुकी थी, animals का use करना start कर दिया था. नेक्स्ट कल्चरल लाइफ, न्यू टाइप ऑफ इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से नए टाइप के टूल्स देखने को मिलते हैं, लाइक माइक्रोलिथ्स टूल, स्मॉल टूल्स. इकोनॉमिक लाइफ, hunting, fishing and food gathering. Rock cut architecture of Mesolithic India not only reflects the cultural life of the time but also fine aesthetic sense comparable to the modern painting. Then Mesolithic paintings shows the scenes that people feel or see. जो भी लोग Mesolithic age के लोग अपनी डेली एक्टिविटीज में करते थे, यूजुअली उन्हीं चीज़ों को अपने वॉल्स पे, शेल्टर्स पे पेंटिंग्स के रूप में डिस्क्राइब कर देते थे. नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज, और यू कैन कॉल इट न्यू स्टोन एज, विच इज अराउंड from 9000 to 3000 BC. Now one thing must be noted down. In Indian subcontinent, Neolithic age started around 9000 BC. Remember that. In Indian subcontinent, not in India. In Indian subcontinent, it started around 9000 BC, but in India, it started in three phases. Like in Eastern India around 6000 BC, in Middle India around 5000 BC, and in Southern India around 2500 BC. A remarkable progress seen in human civilization, because हमने देखा कि मेसोलिथिक एज में लोगों ने डोमेस्टिकेशन करनी स्टार्ट कर दी थी और ग्रुप्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे. देयरफॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन देखने को यहाँ पे मिल जाती थी. नेक्स्ट, पॉलिश्ड एक्सिस. बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सिस, थ्री कल्चर्स केम इनटू बी. फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर, जो कि बुरजा होम कश्मीर में एक साइट है, वहाँ पे मिलता है. नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड हिल्स ऑफ असम, गैरो हिल्स में देखने को मिलता है. एंड द लास्ट वन इज साउथ, विच इज फ्रॉम साउथ ऑफ गोदावरी. देन एग्रीकल्चर, कौन सी क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो किया जाता था? वीट, बार्ले, राइस, मिलेट एक्सेट्रा. डोमेस्टिकेशन, कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे? शीप, गोट, कैटल एक्सेट्रा. ओके, थ्री टाइप्स ऑफ पोट्री कल्चर वर सीन इन न्यूलिथिक एज. फर्स्ट वन इज अनग्लेज्ड पोट्री, जो रफ सरफेस पे की जाती थी. देन ट्विस्टेड पोट्री, दैट मीन्स राइस हस्क को वेट क्ले में एब्जॉर्ब करके डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था. एंड थर्ड वन इज क्ले प्लस माइका प्लस सैंड पोट्री कल्चर. डन, थ्री टाइप्स सही हो गए यहाँ पे. ओके, एंड दिस इज द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है. कोर्स ग्रे पोट्री वर सीन ओनली इन बुरज़ाहोम कश्मीर. This is the only site where we can see the coarse grey pottery. Okay. Next, social life. अब यहाँ पे ग्रुप्स जो थे, मीजोलिथिक में 10 to 30 पीपल के ग्रुप बनते थे, बट यहाँ पे अराउंड 50 to 300 पीपल के ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए. दैट मीन्स और भी ज़्यादा लोग ऐड होते चले गए. एंड larger populations they settled near the water to grow food for larger populations. Now larger population थी तो वो दो जगहों पे रहना पसंद करते थे. फर्स्ट वन इज परमानेंट सेटलमेंट विच इज सिटीज, और सेकेंड यू कैन से नॉन परमानेंट स्मॉल सेटलमेंट्स विच आर टाउन्स एंड विलेजेस. ओके, दे लिव इन रेक्टेंगुलर हाउसेस. पिट ड्वेलिंग इन गुफक्राल, कश्मीर में एक साइट है ये वाली गुफक्राल. पिट ड्वेलिंग मीन्स एक अंडरग्राउंड एक पिट जैसा वो डंक कर लेते थे और वहां पे वो रहते थे. एंड डेड वॉज बुराइड इन साइड द हाउस विच इज अ फीचर ऑफ न्यूलिथिक एज. नेक्स्ट, नाउ व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ थी नियोलिथिक एज के लोगों की? इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री. प्रोडक्शन जो भी वो प्रोड्यूस करते थे एक ग्रुप के अंदर या फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ वो शेयर कर लेते थे. मिक्स्ड फार्मिंग थी, कोई भी इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मनी का कोई रोल नहीं था. अगर होता तो जरूर इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन देखने को मिलती. सोशल रूल्स वर डिसाइडेड बेस्ड ऑन जेंडर, एज, किनशिप. Okay, now very important page, important sites for Neolithic age: Poldi Hawa and Megar in Allahabad.
वाइट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर हाउसेस और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, अर्लीस्ट साइट वेयर एग्रीकल्चर स्टार्टेड, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट मुर्जा होम इन कश्मीर, हेयर डॉग्स वर बुराइड विद देयर मास्टर्स, ये फीचर है इसका। नेक्स्ट गुफकराल इन कश्मीर, पिट ड्वेलिंग अभी हमने पढ़ा, एंड ग्रेवयार्ड्स ऑल्सो। नेक्स्ट चिरांड इन बिहार, टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन। देन पालकी हाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, टकलकोटा, हलूर इन कर्नाटका, एश माउंट्स हैव बीन फाउंड हियर। लास्ट वन इज बेलन वैली। बेलन वैली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों फेसिस के रिमेन्स यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? बेलन वैली में। डन। नाउ इस वीडियो में और आने वाली सारी वीडियोस में आर्ट एंड कल्चर साथ में ही इंक्लूडेड रहेगा, कोई अलग से नहीं करना पड़ेगा। पर्पस एक ही है कि किसी को भी वीडियो देखने के बाद ये ना सोचना पड़े कि ये पार्ट हमारा रह गया, ये कहाँ से करना है, या फिर कोई और सोर्स रेफर करना पड़े, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना वीडियो देखने का। इफ समवन इज पुटिंग हिज और हर टाइम विच इज ऑलरेडी वेरी प्रीशियस, तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। ओके, सो ये सारा कंटेंट जो है आर्ट एंड कल्चर का, ये प्योरली फाइन आर्ट्स क्लास 11th NCERT से लिया गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑन द केव वॉल्स और कैनवसेस टू मेक देयर शेल्टर्स मोर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। वो अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल करते थे, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर ग्रो करते थे और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिविटीज वो अपनी शेल्टर्स को ब्यूटीफुल कैसे बनाना है वो भी जानते थे और उसके लिए कोशिश भी करते थे। सब्जेक्ट्स कौन से थे उनकी पेंटिंग के? ह्यूमन फिगर्स, ज्योमेट्रिक डिजाइंस और एनिमल सिंबल्स, यही सब वो ड्रॉ करते थे। द अर्लीस्ट पेंटिंग हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक फेज। इससे पहले कोई भी पेंटिंग डिस्कवर नहीं करी गई। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वाज बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कैरलिल अराउंड 1867 to 68। सो आर्कीबोल्ड कैरलिल ने ही पहली बार इंडिया में रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किया है। और उसके अलावा कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट हैं? कोकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे पर्सन्स का नेम और पीछे पूछा जा सकता है कि इनमें से आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, तो अगर हमें पता होगा तो हम आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रॉक पेंटिंग साइट्स कौन कौन सी हैं? MP, UP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, कुमाऊं हिल्स, उत्तराखंड में रॉक शेल्टर्स ऑन रिवर सुयल एट लखुदियर। नेक्स्ट इज ग्रेनाइट रॉक्स जो कि प्रोमिनेंटली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, उनको एज कैनवसेस यूज करते थे। नेक्स्ट विंध्याज हिल्स जो कि MP से लेके कैम्ब्रियन हिल्स UP तक, ये पूरी रेंज ही आप मान लो, यहाँ पे पूरी रेंज में ही पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक की बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है। एंड वन ऑफ देम इज भीमबेटका। भीमबेटका भी इसी रेंज में आती है जहाँ पे 800 रॉक शेल्टर्स मिले हैं। और भीमबेटका को किसने डिस्कवर किया है? बाय VS वकांकर। नेक्स्ट, भीमबेटका के रॉक शेल्टर पेंटिंग्स के अकॉर्डिंगली आर्ट एंड कल्चर को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक का आर्ट एंड कल्चर, उसको 3 फेसेस में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज अपर पैलियोलिथिक फेस, देन मेसोलिथिक फेस एंड थर्ड वन इज कैल्कोलिथिक फेस। फर्स्ट वन इज अपर पैलियोलिथिक फेस। पेंटिंग्स वर लार्जर इन दिस फेस। इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन स्टाइल कौन सा था? लीनियर। कलर्स कौन से यूज किए गए? ग्रीन और डार्क रेड। एनिमल्स were huge like bisons, elephants, rhinos, tigers. Human figures like stick figures, hunters and dancers. Okay, next one is Mesolithic phase. यहाँ पे पेंटिंग स्मॉलर हो गई और थीम्स कौन से थे? हंटिंग। Now what is the unique thing about this phase कि women, young, old, इन लोगों को भी पहली बार पेंटिंग्स में देखने को मिला। ठीक है, इनको भी पेंटिंग्स में इंक्लूड किया जाने लगा फ्रॉम द मेसोलिथिक फेज इटसेल्फ। इससे पहले इनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, तो ये भी बहुत अच्छा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ओके, डिपिक्ट फैमिली लाइफ, हैप्पी लाइफ, कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। देखो तब भी लोगों को पता था कि कैसे हमें बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए कैसे रहना है। देन कलर्स यूज्ड वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन।
नेक्स्ट, हाउ डिड प्रिमिटिव पीपल मेक कलर्स? कलर्स कैसे बनाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाय ग्राइंडिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स तो यूजुअली रॉक्स में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर कहाँ से मिलता था? हेमेटाइट रॉक से। देन ग्रीन फ्रॉम कैल्सिडोनी एंड वाइट फ्रॉम लाइमस्टोन। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उनको रॉक से मिल जाते थे। इसेंशियल्स फॉर पेंटिंग्स। पेंटिंग करने के लिए क्या चाहिए होता था? एक स्टोन जिससे वो कलर ऑब्टेन करते थे। देन उस कलर को वाटर के साथ मिक्स करके स्टिक से उसको कैनवस मतलब वॉल्स पे ड्रॉ करते थे। लास्ट फेज, कैलकोलिथिक फेज। कैलकोलिथिक फेज को अभी तक हमने कवर नहीं किया, बट क्योंकि ये पूरा चैप्टर था तो मैंने इसी को इसमें ही ऐड कर दिया है, कैलकोलिथिक फेज। आई विल ट्राई कि ये कैलकोलिथिक वाला जो पार्ट है इसको बाद में जब कैलकोलिथिक एज के ऊपर वीडियो आएगी उसमें भी इंक्लूड कर दूं, बट ये पार्ट क्योंकि बुक में था, चैप्टर 1 में था फाइन आर्ट्स की, तो मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है ताकि एक कनेक्टिविटी बन जाए। अदरवाइज पता नहीं चलेगा, फिर दो ही पेज रह जाएंगे और थर्ड वाला फिर पता ही नहीं रहेगा कहाँ पे। इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग्स वर सीन which were called as polychrome paintings. Then next, Chalcolithic civilization is well known for its predominantly and orange wheel-made pottery. Wheel-made pottery. People of this age were expert coppersmith, ivory carvers, lime producers, and terracotta craftspeople. Semi-ornaments were made from precious jewels and stones like chalcedony. Next, Maharashtra has flax, cotton, and silk thread available. इसी एज से मिला है उनको. Now, what do we find from their paintings? A very important question, and it can be answered as it helps us to understand about the early human beings, their lifestyle, food habits, daily activities. Above all, they help us to understand their mind, the way they thought. Next, prehistoric period remains are a great witness to the evolution of human civilization through the numerous rock weapons, tools, ceramics and bones. Now, छोटा सा conclusion भी यहाँ पे ऐड किया गया है. The rock paintings are the greatest wealth that the primitive human beings of this period left behind, जिसकी वजह से आज हम उनको जान सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, फूड हैबिट्स कैसी थी, वो कैसे रहते थे. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स. आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, ये मेंस के दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2. अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बट ट्राई टू डू दिस. मतलब इसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, ये तो आप करना ही, इसको मत छोड़ना, ये वाला कर लेना. सेकेंड वाला इट इज़ अप टू यू, मन होगा तो कर लेना, बट फर्स्ट वाले को स्किप मत करना. ये लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, ये अभी न्यूज़ में भी था, निएंडरथाल वॉज हंटर ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम. तो जब कवर कर ही रहे हैं तो उसको भी कर लेते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके बाद वीडियोस आती जाएंगी और आर्ट एंड कल्चर भी बीच में इंक्लूडेड होगा, सो नो वरीज अबाउट दैट. पर्पस यही है कि सबकी प्रिपरेशन ईजी होनी चाहिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ drop that question in comment section, and I'll see you in the next one. Thanks for watching. Stay safe and be happy.